So, here we go. So in the previous class, we have discussed about uh, stages of marketing, evolution of marketing. Today we begin with selling and versus marketing. So basically, selling and versus marketing. Selling means when your focus is only to sell more and more of your products to your customer. But marketing begins with, as we all discussed yesterday, that marketing begin with the identification of needs of your customers. So what does your customer need? That is the very first step in marketing. So selling, the concept of selling, one by one we will discuss this. Selling concept takes an inside out perspective. That means you are from your company to your customer. So you are focusing from your production and ending with selling your products. It starts with the factory, focuses on the company's existing products, and calls for heavy selling and promotion to obtain profitable sales. So basically, what does your company produce in your factory for your customers? The selling start with from here, that whatever your company is producing is the beginning of your selling. So your focus under the concept of selling is company's existing products. So whatever you are producing, your focus is on those products. And how do you engage in this? You sell and promote your products more and more so that you obtain profitable sales. So in the selling, you are doing things like whatever is being produced by your company, you are offering to your customers, you are promoting and advertising those products and goods, and ultimately by selling those products and goods in the marketplace, you are earning profits. It focuses primarily on customer conquest, getting short-term sales with little concern about who buys or why. So your basic objective is to sell more and more. You don't need to bother about why your customers are purchasing your products or who is purchasing your products. Your focus is only to sell as more as you can. So there is no customer-centered marketing practices. As we saw yesterday in the concept of marketing, that marketing is centered around customers. Customer is the king of marketplace in the concept of marketing. But in selling, you are the king. Whatever is being produced by your company is being offered to your customers so that they purchase your products and goods, and ultimately they become a source of profits for your company. So short-term sales with little concern about who buys or why. This is the basic selling concept. In marketing takes an outside in perspective. That is, the marketing perspective begins from the end of customer. So first of all, what you do, you identify your customers, identify their needs, that is what they want, and accordingly design your products, develop the products and manufacture the products, and by selling in the marketplace you earn profits. So it's an outside in perspective, means you begin with your customers, you identify your customers, you search for what your customers need, and accordingly you design your products and services so that you can offer them your products and services in the marketplace. When people try to join in between, it disturbs a lot. So I will not entertain any more requests. So the marketing concept once again begins with identification of your customer and identification of what are the needs of your customers. The marketing concept starts with a well-defined market, focuses on customer needs, and integrates all the marketing activities that affect customers. So
whatever activity is being performed in the marketing by your company, you integrate all those activities so that customers needs are identified. सर जी सॉरी सर टू इंटरप्ट यू, बट सर कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या पढ़ा रहे हो। सब हम सर लोग सब ऊपर से जा रहा है, आप पॉज नहीं ले रहे हो, आप कोई एग्जांपल नहीं दे रहे हो। सॉरी सर बट इट्स ट्रू। कोई बात नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि सेलिंग और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। सेलिंग में हम ओके सिंपली सर। हम क्या कह रहे हैं कि सेलिंग इज बेसिकली स्टार्ट्स विद द फैक्ट्री, दैट इज जो भी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसको आप जाके मार्केट में सेल करते हैं। आपका कस्टमर यस कौन है, आपका कस्टमर आपका प्रोडक्ट क्यों परचेज कर रहा है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी क्या नीड्स है, उससे आपको मतलब नहीं। सिर्फ आपका काम क्या है सेलिंग के अंदर कि आप अपने प्रोडक्ट को बस सेल कर रहे हैं, जितना ज्यादा सेल कर सके उतना ज्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। ये बेसिक हमारा सेलिंग का कॉन्सेप्ट है। और सेलिंग के अंदर आप क्या करें कि आपके जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि जो आप प्रोडक्ट बेचते आ रहे हैं मार्केट में, उन्हीं प्रोडक्ट्स पे आप फोकस कर रहे हैं, आप कोई नया प्रोडक्ट नहीं लेके आ रहे हैं। ये सेलिंग के अंदर है। और मार्केटिंग के अंदर क्या कर रहे हैं कि हम इसका अपोजिट कर रहे हैं। मार्केटिंग को हम बिगिन कर रहे हैं जहां से हमारा कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो नीड्स है, उसकी जो जरूरतें हैं, वहां से हम स्टार्ट करें। तो पहले हम क्या कर रहे हैं मार्केटिंग के अंदर, हम अपना एक मार्केट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मार्केट सेगमेंट को हमने आइडेंटिफाई किया, उसके बाद हम क्या करें, फिर उस सेगमेंट के अंदर हम अपने कस्टमर्स को सर्च करें कि हु आर द प्रोबेबल और प्रोस्पेक्टिव बायर्स ऑफ आवर प्रोडक्ट्स। तो वहां पे आपने अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई किया। उसके बाद क्या करें, उसकी नीड्स को आइडेंटिफाई करें कि कस्टमर को क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने स्मार्टफोन का अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आप स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो रिसेंट ट्रेंड्स में अगर हम कुछ एग्जांपल हमें जैसे देखें कि आजकल क्या चल रहा है कि आपके जो नंबर ऑफ कैमराज हैं, बैक फ्रंट पे, बैक साइड पे जो भी हमारे कैमराज हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है कि आप देखते हैं 2-3 कैमराज आर नॉर्मल, उसके बाद 4 भी कैमरा हैं। तो इस तरीके से आप अपने कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करें कि आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट में किस चीज को सर्च कर रहा है, उसको आपने आइडेंटिफाई किया। और इसी वाले एग्जांपल को अगर हम कंटिन्यू करें कि हमने स्मार्टफोन के अंदर सर्च कर लिया कि कस्टमर चाहता है कि उसका जो स्मार्टफोन है उसमें ज्यादा से ज्यादा कैमरा हो, सो दैट की पिक्चर क्वालिटी बेटर हो, उसको जो चाहे वो नाइट मोड में यूज करे या नॉर्मल मोड में यूज करे, सनलाइट में यूज करे, उसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो बढ़िया हो, उसमें कोई डिफेक्ट ना हो। आपने नीड आइडेंटिफाई कर लिया। फिर उस नीड को आइडेंटिफाई करने के बाद, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करने के बाद आप क्या करते हैं, फिर अपने प्रोडक्ट को आप डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। जहां पे आप सेलिंग के अंदर क्या कर रहे थे कि हम सिंपली जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमने अपनी कंपनी के अंदर फैक्ट्री में जो भी प्रोड्यूस किया उसको हम डायरेक्ट मार्केट में सेल कर रहे थे, विदाउट ड्यू रिगार्ड टू हु आर आवर कस्टमर एंड और व्हाई आवर कस्टमर्स आर बाइंग आवर प्रोडक्ट्स। उस पर हम नहीं फोकस कर रहे हैं। हमारा सिर्फ फोकस था कि हमने जो भी मैन्युफैक्चर किया, कोई भी गुड्स है, सर्विस है, कुछ भी हमने मैन्युफैक्चर कर रखा है, बस उसको हमें सेल करना है सेलिंग के अंदर। लेकिन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर हम इसका अपोजिट कर रहे हैं कि हम क्या करें, सबसे पहले तो हम अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। उस कस्टमर को आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसकी रिक्वायरमेंट को सर्च कर रहे हैं। ओके उस सर, मतलब सर सेलिंग में हम बस मैन्युफैक्चर करते हैं देन सेल, बट इन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वी आइडेंटिफाई आवर कस्टमर्स और अपनी टारगेटेड ऑडियंस ढूंढते हैं। यस सर, इज इट राइट और रॉन्ग? यस यस, दिस इज द थैंक यू कॉन्सेप्ट सर। ऑफ मार्केटिंग। सो उसके बाद फिर हमने क्या किया, फिर प्रोडक्ट को हमने डिजाइन कर लिया, देन वी integrate all the marketing activities, all the functions of marketing, where they are promotion, they are distribution, they are advertising, whatever the activities are there for marketing, we integrate all those activities and finally sell our product to the final consumer or customer. ओके सर, After थैंक यू। this product, after this process, in turn it yields profit by creating relationships. This is the important. In selling, you are not creating any relationship with your customers, but in marketing, you are creating relationship with the right customer based on customer value and satisfaction. Because when you identify your customer,
You identify their needs, design your products according to the needs of your customer, develop marketing activities, integrate all those activities, and finally sell the product into the marketplace. Then it is quite obvious that your customer will be satisfied. They will feel that I am getting value from the product. Whatever price I am paying for this particular product, I am getting value from this product. So the customer relationship will will be there in marketing concept. So when you target your customers, identify their needs, design your products accordingly, and integrate all the marketing activities, and finally selling the product in the marketplace, you satisfy your customers, which in turn creates value for your company. This is the basic marketing concept. Moving ahead, this is the difference between selling and marketing. So selling, in the starting point is factory. You are beginning with your factory, that is whatever is being produced on your company, you are just simply selling those products and goods in the marketplace. Starting from factory, suppose you have produced any goods, let's say you have produced watches, wrist watches. Then what is your focus on existing product? So whatever you producing earlier, you are only focusing on those products. Then what is means? What are the methods? What are the techniques that you use to advertise, promote, distribute your products in the marketplace? So selling and promoting. So simply selling and promoting. Promoting means you promote your products in the marketplace by the way of advertising, sales promotion, personal selling, direct selling, or whatever the methods of promotion may be. We will discuss it later on in detail. So your means, that is your techniques, are selling and promoting under the concept of selling, and in the end what you do, profits through sales volume. So profits through sales volume means you earn profits by selling more and more. Here the customer satisfaction, customer value, customer loyalty, customer needs, customer wants are not there in the selling concept. Whatever you have produced in your factory, you are just simply selling those goods and services to the customer, and you are earning profit, income, or whatever you can say through sales volume. So more and more you sell, you get more and more income and profit. So this is the selling concept. On the other hand, marketing, starting point is your market, because in marketplace you identify your customer and accordingly identify their needs. So marketing के अंदर हम क्या करें, सेलिंग का अपोजिट करें. जहां पे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट सेलिंग के अंदर फैक्ट्री था, वहां पे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट मार्केटिंग के अंदर मार्केट है. मार्केट वहां पे है. मार्केट का मतलब जहां पे बायर्स एंड सेलर्स इंटरैक्ट कर रहे हैं. तो जब आप मार्केट प्लेस में जा रहे हैं तो आप अपने प्रोबेबल कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं. उनके नीड्स क्या हैं उसको आइडेंटिफाई करें. फिर आगे हमारा उसमें फोकस क्या है मार्केटिंग के अंदर, कि हम कस्टमर नीड्स पे फोकस करें कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है. अब फॉर एग्जांपल कोविड-19 का एग्जांपल हम लेते हैं. अब कोविड-19 के अंदर हमें हैंड सैनिटाइजर एंड मास्क आर कंपलसरी. अब मास्क और हैंड सैनिटाइजर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कस्टमर आपका बाहर निकल रहा है. अब वो हैंड सैनिटाइजर का यूज करेगा, मास्क का यूज करेगा, और जो अदर प्रोटेक्टिव डिवाइसेस हैं, इक्विपमेंट्स हैं, या और जो वेज हो सकते हैं वो यूज करेगा. तो आपने कोविड-19 का एक जो है अपॉर्चुनिटी एज अ मार्केटियर, उसको अपॉर्चुनिटी के जो है पर्सपेक्टिव से देखते हुए आपने क्या किया, आपने मास्क को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया. आपने कस्टमर की जो नीड्स हैं उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि कस्टमर का हमारे जो है उसको मास्क चाहिए. देन यू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मास्क. अब मास्क आप बना रहे हैं तो फिर उसमें भी क्वालिटी है कि भाई आप 1 प्लाई का बना रहे हैं, 2 प्लाई का बना रहे हैं, 3 प्लाई का बना रहे हैं, उसमें 1 लेयर है, 2 लेयर है, उसकी थिकनेस क्या है. जो मास्क हमें जो मार्केट में अवेलेबल है उसकी थिकनेस कितनी है. कई बार अब जैसे इसमें कैटेगरीज होते हैं कि भाई आप N95 मास्क बना रहे हैं, वो कॉस्टली होता है, 200 to 300 को मिलता है. और आपका एक नॉर्मल मास्क जो
लाइट ब्लू कलर में होता है वो आप अगर परचेज करने जाए तो मार्केट में 5 से 10 रुपए का मिल जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ मास्क, आप अपने कस्टमर को नीड जो है उसकी आइडेंटिफाई करने के बाद आप मास्क का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो आपने मास्क को प्रोड्यूस कर लिया, सपोज करो आपने दोनों कैटेगरी को बना लिया। आपने क्या किया, जो लाइट ब्लू कलर वाले हैं वो भी बना लिया जो 5 से 10 रुपए में मिल रहे हैं, या और आपने उसमें उसकी जो थिकनेस है वो और बढ़ा दी, तो मान लेते हैं कि 20 से 25 रुपए में आपने बना लिया। और आप दूसरी तरफ N95 वाला भी बना रहे हैं जो मेडिकली अप्रूव्ड होता है, जो है उसमें जो काफी उसकी जो क्वालिटी होती है बेटर होती है। आपके जो पोल्यूटेंट्स हैं, जो डस्ट वगैरह है और जो काफी माइक्रो जो एलिमेंट्स है उसको भी वो फिल्टर कर लेता है। तो वो जो उसकी जो है प्राइस आपको 200 से 300 रुपए मार्केट में अवेलेबल होता है। आपने दोनों बना लिया। अब आप क्या करेंगे कि आपको कस्टमर आपका मिल गया है, आपने उसकी आइडेंटिफाई करनी नीड्स को। अब आप कोशिश करेंगे कि मैंने 2 कैटेगरी के मास्क तो बना लिए, लेकिन जो मैंने 2 कैटेगरी के अगर मास्क बनाए हैं तो मेरे कस्टमर्स भी 2 कैटेगरी के होंगे। कि आपने एक नॉर्मल मास्क बना लिया और एक आपने सपोज करो जो 2 से 300 वाला बता रहे हम, N95 वाला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो प्रीमियम क्वालिटी का आपने बना लिया कि उसको कुछ ही लोग परचेज कर सकते हैं। तो आप उसी के अकॉर्डिंगली आपके जो आगे के मार्केटिंग के जो एक्टिविटीज हैं उसको आप इंटीग्रेट करना स्टार्ट करेंगे। कैसे इंटीग्रेट करना स्टार्ट करेंगे कि आप उसका प्रमोशन कैसे करेंगे, कि आप क्या उसको एडवर्टाइजिंग के थ्रू प्रमोट करेंगे, क्या उसको आप डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू प्रमोट करेंगे, या आप सेल्स प्रमोशन में जाएंगे, या आप और अदर जो मेथड्स हैं प्रमोशन के उसके थ्रू जाएंगे। सपोज करो आपने एडवर्टाइजिंग का मेथड चूज कर ले कि आपने कोई भी एक एडवर्टाइजिंग की कंपनी हायर कर ली, उसको आपने पैसे दे दिए कि यू टेक दिस अमाउंट एंड एडवर्टाइज माय प्रोडक्ट्स टू माय प्रोबेबल कस्टमर अकॉर्डिंगली। उसने उसको एडवर्टाइज कर दिया। अब आपके जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में अटेंशन जो है गेन करना स्टार्ट करता है। तो अब आपका टारगेट क्या है, अब जब मार्केट में आपका प्रोडक्ट अटेंशन गेन करना स्टार्ट करेगा, दोनों कैटेगरी के आपके मास्क यहाँ पे प्रोडक्ट हैं जो, तो आपके पास कस्टमर्स आएंगे। अब जब कस्टमर्स आपके पास परचेज करने आएंगे तो फिर आपके ऊपर आती है कि आप उन प्रोडक्ट्स को फाइनल मार्केट में कैसे पहुंचाएंगे। दैट इज द प्लेस, जो हमारा 4th पी होता है प्लेस वाला, कि डिस्ट्रीब्यूशन आपको कैसे करेंगे, आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे लेकर जाएंगे। कि क्या आप जो है जो नॉर्मल एक अपनी रिटेल स्टोर खोलेंगे, अपना खुद का स्टोर खोलेंगे, या जो हमारे बाकी जो किराना स्टोर्स होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, जिनको हम मार्केट इंटरमीडियरीज कहते हैं, उनकी आप हेल्प लेंगे। तो उनकी आप हेल्प लेंगे, या आप डायरेक्टली जो है रिटेल स्टोर ओपन करके आप मास्क को अपने फाइनल कस्टमर तक पहुंचाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा मीन्स है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग इसलिए यूज कर रखा है कि इंटीग्रेटेड मार्केटिंग के अंदर हमारे जितने भी मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी मार्केटिंग के चैनल्स हैं, वो सारे इंक्लूड होते हैं। आपके राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर नीड्स टू फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर, ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन बिटवीन these two known as इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। तो आपके जितने भी चैनल्स हैं, चाहे वो आपके प्रमोशन के टूल्स हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूशन के टूल्स हैं, आप उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे करेंगे। जैसे हमने कहा कि भाई हम 2 कैटेगरी के मास्क बना रहे हैं, हम एक की कीमत 20 से 25 रुपए रखेंगे, 25 रुपए मान लेते हैं रखेंगे, और दूसरे वाले की कीमत 250 रखेंगे, जो हम N95 बना रहे हैं। तो आपने जब डिसाइड कर लिया ये सारी चीजें कि हमारा प्राइस रेंज ये होगा, 2 कैटेगरी हमारे पास मास्क हैं तो 2 हमारे प्राइसेस होंगे। उसके बाद हमने प्रमोशन का जो है प्रमोट करने के लिए हमने कहा हम एडवर्टाइजिंग कंपनी को हायर कर रहे हैं, वो हमारी मास्क जो प्रोडक्ट है उसका एडवर्टाइजिंग करेंगे, उसको मार्केट में प्रमोट करेंगे। देन उसके बाद फिर आती है बात कि आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फाइनल कस्टमर तक कैसे पहुंचाएंगे प्रोडक्ट को। तो सपोज करो हमने कहा कि ठीक है, जो नॉर्मल रिटेल स्टोर्स होते हैं, जो हमारे किराना स्टोर्स होते हैं, यानी कि जो हम मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज की हेल्प लेंगे, तो पहले आप क्या करेंगे, आप होलसेलर को कॉन्टैक्ट करेंगे कि जो आपके प्रोडक्ट को बल्क में बाई करेगा, वो उसको उस प्रोडक्ट को अपने पास स्टोर करेगा। फिर होलसेलर क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर को कॉन्टैक्ट करेगा, जो एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं,
उसको कांटेक्ट करेगा। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेंगे, फिर वो कांटेक्ट करेंगे रिटेलर से। रिटेलर जो किराना स्टोर्स वाले हैं, अगर उनको मान ले तो रिटेलर्स का, या सपोज करिए किसी ज्योग्राफिकल एरिया में, जैसे मान लेते हैं हम दिल्ली, हमारा एक हम मार्केट अपना ले लेते हैं कि हमारा मार्केट सेगमेंट जो होगा, हमारा टारगेट कस्टमर दिल्ली के कस्टमर्स होंगे। तो अब हम मैन्युफैक्चरिंग करने दिल्ली में, तो हमने क्या किया, दिल्ली के किसी एक बड़े जो है होलसेलर को कांटेक्ट करेंगे। सपोज करो कि हमने साउथ दिल्ली की जो है होलसेलर को कांटेक्ट किया। अब साउथ दिल्ली के हमने होलसेलर को कांटेक्ट किया कि हमारा जो प्रोडक्ट है, मास्क जो है, वो हमें साउथ दिल्ली में सेल करना है। हमने साउथ दिल्ली के होलसेलर को कांटेक्ट कर लिया और उससे हमने टर्म्स एंड एग्रीमेंट जो भी है वो क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। उसके बाद अब हमारी हेडेक खत्म हो गई। हमारी हेडेक क्यों खत्म हो गई कि अब ये जो होलसेलर है उसका काम है कि हमारे प्रोडक्ट को वो फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाए। तो अब होलसेलर क्या करेगा, सपोज करो कि उसने साउथ दिल्ली के किसी एक जो है एरिया के रिटेलर से कांटेक्ट किया कि भाई आप जो है इस वाले प्रोडक्ट को यहाँ पे इस एरिया में सेल करेंगे। साउथ दिल्ली से मान लेते हैं, या जो है क्या कहते हैं, एक एग्जांपल ले लिया हमने कि ठीक है हम महरौली जो बदरपुर का एरिया है बॉर्डर का, वहां पे हम अपने मास्क को सेल करेंगे। तो वहां का रिटेलर से कांटेक्ट करेगा हमारा होलसेलर। अब होलसेलर से जो है सेल करेगा रिटेलर को, और रिटेलर फाइनली जो है जो वहां के महरौली और बदरपुर बॉर्डर के एरिया में जो भी छोटे छोटे किराना स्टोर है वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो आपकी जो मार्केटिंग की एक चेन है जो चल रही है पूरी, कि आपने प्रमोट उसको कैसे किया, उसकी आपने प्राइसिंग कैसे डिसाइड किया, उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से कर रहे हैं, तो वो सारी कॉन्सेप्ट हमारे इंटीग्रेटेड मार्केटिंग के आएंगे। जब आपका मास्क जो है फाइनल कंज्यूमर तक आप पे पहुंचेगा, तो फिर आपको जो प्रॉफिट अर्न करेंगे थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो आपका मास्क परचेज करने के बाद, उसको लगाने के बाद कस्टमर क्या फील करता है कि क्या वो जिस पर्पज के लिए मास्क उसने परचेज किया उस पर्पज को वो सर्व कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। इसका सिंपल हमारा जो पर्पज है मास्क जो है लगाने का, कि हमारा जो वायरस का स्प्रेड है उसको हम कंटेन कर सकें। जो भी हमारे अगर कोई यहाँ पे स्नीजिंग कर रहा है या बात कर रहे हैं, तो जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी सर आपके बोलो। सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है सर, क्लियर आवाज नहीं आ रही सर। हो सकता है इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी। अब आ रही है बराबर? सर आपकी साउंड ब्रेक हो रही है सर। ओके, यस सर आ रही है। सर हमें तो क्लियर आ रही है सर, आपकी आवाज क्लियर आ रही है आपको? यस सर बिल्कुल क्लियर आ रही है। इनकी शायद इनका इंटरनेट इशू हो सकता है, या तो मेरी तरफ से कई बार फ्लक्चुएशन हो सकता है या इनकी तरफ से हो सकता है। हमें तो क्लियर ही आ रही है। अब आ रही है क्लियर आपको? यस सर क्लियर। ठीक है, तो आपने कांटेक्ट किया, तो आपका जब फाइनल आप ठीक है, तो आपने जब फाइनल अपने प्रोडक्ट को सेल कर दिया, तो आपका जो कस्टमर है अगर उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है तो वो आपके प्रोडक्ट को बाई अगेन एंड अगेन करेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है हमारे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में और सेलिंग में। सेलिंग के अंदर हम बिगिन कर रहे हैं कि हमने जो भी प्रोड्यूस किया है उसको हम फाइनल जो है मार्केट में सेल करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कस्टमर कौन हो सकता है, कौन होगा, या हमारा कस्टमर क्यों परचेज कर रहा है, उससे हमें कुछ नहीं मतलब। हमें सिर्फ हमने एक प्रोडक्ट बनाया, उसको हमें बस मार्केट में जाके बेचना है। हम उसको कैसे भी बेच सकते हैं। जो बल्क सेलिंग है वो हमें करनी है सेलिंग के अंदर। हमारे कस्टमर हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचता है, क्या वो हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है या नहीं है, क्या वो हमारे लिए वैल्यू क्रिएट कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या वो हमारे प्रोडक्ट को फर्दर किसी और को बताएगा या नहीं बताएगा, उसके बारे में गुड वर्ड्स कहेगा या नहीं कहेगा, या बैड वर्ड्स कहेगा या नहीं कहेगा, उससे हमें नहीं मतलब है। हमें सिर्फ हमने एक प्रोडक्ट को बनाया, बस उसको हमें सेल करना है बाय हुक और क्रूक, कैसे भी करके बस हमें सेल करना है। जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था कि बीपीओ के कंपनी के अंदर जो काम करते हैं, बीपीओ में जो काम करते हैं, जो
टेली मार्केटियर्स होते हैं, जो कॉल सेंटर्स पे बॉयज एंड गर्ल्स जो काम करते हैं लोग, उनको एक टारगेट दिया जाता है, डेली टारगेट दिया जाता है कि अगर आपको 25 कॉल सपोज करो एक डे में करनी है तो आपको करनी है। इससे आपका मतलब नहीं है कि आप जो है उन कॉल्स में कितने आपके पॉजिटिव कॉल्स आ रहे हैं, कि मतलब कि कितने लोग आपके प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए विलिंगनेस शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सिर्फ आपको टारगेट दिया गया, ठीक है आपको 25 कॉल्स ईच डे यू हैव टू कॉल एंड जस्ट कॉल, तो आपको करनी है तो आपको टारगेट अचीव करना ही करना है। वो अलग डिपार्टमेंट होगा कि भाई ठीक है इन्होंने 25 कॉल्स करी। अब आप किसी दूसरे एम्प्लॉय से कहा जा सकता है कि आप सपोज करके 25 में से एटलीस्ट हमें 5 जो है 5 हमें पॉजिटिव कॉल्स चाहिए, यानी कि हमें 5 कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, तो वो आप करें जैसे भी करें। तो सेलिंग के अंदर हमने एक टारगेट रख लिया कि ठीक है हमारा प्रोडक्ट, बस हमारा मतलब है कि हमें सेल करना है तो बस सेल करना है, सिंपल सा मतलब है। और सेलिंग के अंदर हमारा जो इनकम अर्न करने का मेथड है, प्रॉफिट अर्न करने का मेथड है कि बस हम जितनी ज्यादा से ज्यादा सेल्स को, अपने सेल्स वॉल्यूम को बढ़ा सकें, उतनी ज्यादा से ज्यादा हम प्रॉफिट को अर्न कर पाएंगे। और मार्केटिंग के अंदर इसका अपोजिट चलता है। जहां आप फैक्ट्री से स्टार्ट कर रहे थे सेलिंग के अंदर, वहां आप मार्केट प्लेस के अंदर जो है मार्केट से स्टार्ट कर रहे हैं, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर। सबसे पहले आपने अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई किया, आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट में क्या सर्च कर रहा है वो आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उसके बाद फिर जितने भी मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी मार्केटिंग की एक्टिविटीज हैं, उनको आप इनिशिएट करते हैं। तो आप अपने प्रोडक्ट को उसी के अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं, उसकी प्राइसिंग उतनी करते हैं, उसकी प्रमोशन करने के लिए। जी सर, सर्विसेज किसके अंदर आती है? क्या चीज? सर्विसेज मतलब सर जैसे सर हेयर नहीं, आप क्या पूछ रहे हो? सर्विसेज किसके अंदर आती हैं ये पूछ रहे हो? यस सर। देखो, अगर हम बात करते हैं, अगर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट में, हाँ तो वो भी एक तरीके की सर्विस ही है सर। हाँ सर्विस है, बिल्कुल सर्विस है। हाँ सर, कोई हम प्रोडक्ट खरीद के तो नहीं ला रहे ना। हाँ देखो, जो हम अगर प्रोडक्ट की हम बात करते हैं मार्केट के अंदर, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर, तो प्रोडक्ट हमारा कुछ भी हो सकता है। वो फिजिकल प्रोडक्ट भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकता है, कोई आपको एक्सपीरियंस हो सकता है, कोई टूरिस्ट प्लेस हो सकता है, या कोई सेलिब्रिटी भी हो सकती है। जो हमारा प्रोडक्ट है, अगर आपको ध्यान हो तो जब हमने मार्केट हम कर रहे थे, मार्केटिंग देख रहे थे, तो जब हम स्कोप ऑफ मार्केटिंग के अंदर कर रहे थे, हम 10 बेसिक चीजों को लेके चल रहे थे कि हमारा मार्केटिंग का जो प्रोडक्ट, अगर हम सिंपल प्रोडक्ट कहते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड हो सकती हैं। तो अगर मैं सिर्फ प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम गुड्स की बात कर रहे हैं, हम सर्विस की भी बात कर रहे हैं। आई होप कि ये क्लियर है आपको। यस सर। ठीक है, तो मार्केटिंग के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द कस्टमर साइड, कि हम अपने सबसे पहले कस्टमर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है वो देख रहे हैं। फिर उसके बाद हम अपनी जो मार्केटिंग के बाकी जो चैनल्स हैं उनको हम इनिशिएट करते हैं, और लास्ट में हम क्या कर रहे हैं कि वी आर अर्निंग प्रॉफिट्स थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन, दैट इज वी आर सेटिस्फाइंग आवर कस्टमर्स एंड customers in turn are creating value for our goods and services for our company. So these two things, selling and marketing, basic difference. Moving ahead, marketing mix. So marketing mix is basically the combination of 4 P's, that is price, place, promotion and your product. First of all, product, price, place and promotion. So all these 4 P's collectively are known as marketing mix. So the marketing mix is the set of tactical marketing tools that the firm blends to produce the response it wants to the target market. So as a marketer, what I am doing कि मेरे जितने भी 4 P's हैं उन सबको मैं ऐसे सेट कर रहा हूँ, उनको ऐसे ब्लेंड कर रहा हूँ अपनी मार्केटिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कि मेरा जो टारगेट मार्केट में जो भी मेरा ऑब्जेक्टिव है उसको मैं अचीव कर पाऊँ। एज अ मार्केटर मेरा ऑब्जेक्टिव यही होगा कि मेरे जितने से ज्यादा मैं अपने प्रोडक्ट को मार्केट में
जो है अटेंशन गेन करवा पाऊं, जितना ज्यादा से ज्यादा मैं सेल कर पाऊं, जितना ज्यादा से ज्यादा मैं मार्केट शेयर को कैप्चर कर पाऊं। कोई भी कंपनी का टारगेट यही होगा कि हम मार्केट शेयर को ज्यादा से ज्यादा कैप्चर कर पाएं और हम जितना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके वो अर्न कर पाएं। तो मार्केटिंग मिक्स इज द सेट ऑफ टैक्टिकल टूल्स। टैक्टिकल टूल्स व्हाई? बिकॉज वी प्ले विद दीज टूल्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द मार्केटिंग। तो हमारी जो मार्केटिंग की स्ट्रेटजी होती है उसको हम बहुत अच्छे तरीके से जो है ये जो चारों 4 P's हैं इसको हम प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल छोटा सा देखता हूँ, अभी जैसे कोविड-19 का टाइम चल रहा है, तो कोविड-19 में अभी आपको मैंने मास्क एंड सैनिटाइजर वाला जो एग्जांपल दिया, अब आप क्या देख रहे हैं कि आपका जो फर्नीचर है वो भी मतलब कि कोविड-19 प्रूफ करके आ रहे हैं। कि अब जैसे अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, किसी कंपनी का प्लाईवुड है, जो ये फर्नीचर होते हैं, किचन की अलमारी है और आपके जो डोर्स हैं, ये सब की मतलब कि वो एडवर्टाइज ऐसे करते हैं कि वो जो है उसको टच करने जाता है और वो टच करने से पहले सोच में पड़ जाता था, लेकिन फिर बाद में ही उसके जो है ऐड आता है कि दिस फर्नीचर्स आर कोविड-19 प्रूफ, दे आर वायरस प्रूफ। तो इस तरीके से आप अपने मार्केटिंग के अंदर इन टूल्स को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं कि आप नया अपॉर्चुनिटी, एक नई मार्केट अपॉर्चुनिटी अपने लिए और अपनी कंपनी के लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो ये प्लाईवुड का मैंने आपको एग्जांपल दिया, और भी हमारे कई सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे अब जो वेजिटेबल्स हैं, अब आप क्या देख रहे हैं कि जो आपके माइक्रोवेव आ रहे हैं या फिर आपके जो वेजिटेबल्स हैं उनको सैनिटाइज करने के लिए आपको यूवी मशीन्स आ रही है, अल्ट्रावायलेट मशीन्स जो है, उसमें आपके जो उनकी यूवी रेज होती हैं उसको आप जो है बस सिंपली उस जो भी मशीन है उसके अंदर आप पुट करो अपने वेजिटेबल्स को और वो सैनिटाइज हो जा रही है। तो मार्केट के अंदर हम कैसे कर सकते हैं, कैसे मतलब कि हम अपने प्रोडक्ट को अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टाइम हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं, उसमें हम क्या नया ला सकते हैं। प्लाईवुड तो पहले भी आ रही होंगी, उसमें कौन सा उसको सैनिटाइज करके दे रहे हो आप। सिंपली आप अपने प्रोडक्ट को बस जो है मार्केट में बेच ही रहे हो। उसमें कोई अगर आपको मार्केटियर ये प्रमोट कर रहा है कि हम प्लाईवुड को जो है मतलब कि वायरस प्रूफ दे रहे हैं, तो उसमें जरूरी नहीं है कि वो उसको सैनिटाइज करके दे, बस उसने अपनी मार्केटिंग की जो प्रमोशन के टूल्स हैं उसको कैसे डिजाइन करेगा। जो हमारा वन ऑफ द 4 P's प्रमोशन है उसको हम कैसे डिजाइन कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हम जो है बाकी P's को भी डिजाइन करते हैं। तो दैट इज द टैक्टिकल मार्केटिंग टूल कि आप अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टाइम उसको आप डिजाइन कर रहे हैं। तो क्यों डिजाइन कर रहे हैं? क्योंकि आपको रिस्पॉन्स चाहिए। कौन सा रिस्पॉन्स चाहिए? कि आप अपने टारगेट मार्केट में क्या चाहते हैं, कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल करना चाहते हैं, हाउ डू यू वांट टू सेल योर प्रोडक्ट और व्हाट इज द योर ऑब्जेक्टिव इन द मार्केट प्लेस। सो यू आर प्लेइंग विद 4 P's: product, price, place and promotion. The marketing mix consists of everything the firm can do to engage consumers and deliver customer value. तो इन 4 P's के हेल्प से आप कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। अगर आपको प्राइस बढ़ाना है, आपको प्राइस रिड्यूस करना है, आपके जो प्रमोशन के टूल्स हैं वहाँ पे खर्च करना है, आपको अगर फार फ्लंग एरियाज में अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, विलेज एरिया में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो जो आपका प्लेस वाला जो P है दैट इज प्लेस वाला, उसमें जिसमें आपकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी वगैरह आती है, उसको आप कैसे अपनी अकॉर्डिंग नीड के लिए ब्लेंड करते हैं, उसको कैसे मॉडिफाई करते हैं। तो whatever a marketer can do in the marketplace, he can do with the interaction of these 4 P's. We will discuss it later on. 4 P's. The many possibilities can be collected into 4 groups of variable. There are 4 P's. जो हमारा प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन है, उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे an effective marketing program blends the marketing mix elements into an integrated marketing program. Integrated marketing program क्यों? क्योंकि because we want to have interaction of these 4 P's in according to the need of time and what are our objectives in the marketplace. Integrated marketing program designed to achieve the company's marketing objectives by engaging consumers and delivering value to them. यहाँ पे आप
वैल्यू दे रहे हैं कस्टमर को, यानी कि आपका जो कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद, उसको यूटिलाइज करने के बाद, उसको कंज्यूम करने के बाद, या अगर सर्विस आप कर रहे हैं तो उसकी सर्विसेज अवेल करने के बाद सेटिस्फाइड है या नहीं है। अल्टीमेट आपका जो मार्केटिंग के अंदर ऑब्जेक्टिव है कि आपका कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर आपका जो है लॉन्ग टर्म में आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आपका कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए। वो आपके प्रोडक्ट को अगर परचेज कर रहा है तो उसके लिए जो उसने प्राइसेस पे किए वो उसको लगने चाहिए कि हाँ मेरे को इस प्राइस की वैल्यू मिली है। अदरवाइज ही विल not buy your products, and also he may also tell others not to do so. The marketing mix constitutes the company's tactical toolkit for establishing strong positioning in target market. Positioning का मतलब होता है कि हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ऐसा जो है उसको प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा जो है उसको एडवर्टाइज कर रहे हैं कि वो एक कंज्यूमर के माइंडसेट में वो एक डिस्टिंक्टिव पोजीशन ऑक्यूपाई करता है कि हमें कंज्यूमर को लगना चाहिए कि हाँ इस कंपनी का प्रोडक्ट कुछ अलग है, इसमें कुछ न्यू फीचर्स हैं या कुछ नई बात है। तो ये हमारा जो है 4Ps का जो टैक्टिकल टूल है मार्केटिंग मिक्स के अंदर, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, जिसको हम कलेक्टिवली 4P कहते हैं। तो इसके अंदर जितने भी मार्केटिंग के अंदर हम जो भी एक मार्केटर काम कर रहा है, चाहे वो उसके अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सेल करवानी हो, कंपटीटर को मार्केट से बाहर करना हो, कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करना हो अपने प्रोडक्ट के टूवर्ड्स, तो वो सारा वो कर सकता है विद द इंटरप्ले ऑफ दिस 4Ps। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे पहला जो हमारा P है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हमारा क्या है, जैसे अभी किसी ने पूछा था कि सर्विस क्या, हमारा जो हेयर कटिंग करवाने जा रहा है तो वो हमारा क्या है, सर्विस में वो प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूड होगा या नहीं होगा। तो प्रोडक्ट्स मींस द गुड्स एंड सर्विसेज कॉम्बिनेशन द कंपनी ऑफर्स टू द टारगेट मार्केट। तो आप जो भी मार्केट के अंदर जो भी चीज आप ऑफर करने जा रहे हैं, चाहे वो फिजिकल गुड्स हो सकता है, सर्विस हो सकती है, एक्सपीरियंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कॉज रिलेटेड मार्केटिंग हो सकता है, कोई अवेयरनेस कैंपेन हो सकता है, कोई एडवाइस हो सकती है। फॉर एग्जांपल ट्रैफिक रूल्स में हम देखते हैं डोंट मिक्स ड्रिंक एंड ड्राइव, या फिर स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये जो सारी चीजें हैं, अब जैसे कोविड-19 का जो टाइम पीरियड चल रहा है तो इसमें क्या है, 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी, और मास्क पहनना जो है अब बहुत अनिवार्य है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इस तरीके से जो अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाते हैं, जो आप आइडियाज को जनरेट करते हैं, जिसे हम आइडिया मार्केटिंग कहते हैं, कि आपका प्रोडक्ट सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट तक ही वो सीमित नहीं है, it goes beyond that. So whatever offering is being made by you in the marketplace, that offering constitutes the part of your product. So the goods and services combination the company offers to the target market. So whatever you are offering in the marketplace is the product of your company, your basic offering, whatever it may be, physical forms, physical goods, services, experiences, tourist places, ideas, cause related marketing, social marketing, whatever you think, whatever you can think of to offer in the marketplace, that will be your product. Now what includes product? Variety. Of course, when you are producing anything, any product, it should have a variety because customer seek variety. Quality, of course, that product must have some quality, otherwise no one will buy your product. Design, it should be attractive, it should be appealing to eyes, it should look decent, it should be look like something that what a product it is. Features, of course, features, brand name, packaging and services. So these are the basic elements of your product. Variety, quality, design, how you design your product, features, ब्रांड नेम। ऑफ कोर्स अगर हम आज की जो जनरेशन है, जो यंगर जनरेशन है, उसकी हम बात करें, हम लोगों की जो एज है, तो उसमें हम ब्रांड को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो सपोज करो कि आपका फ्रेंड सर्कल है या हमारा फ्रेंड सर्कल है, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि भाई आपने कौन से
ब्रांड का कोई स्मार्टफोन परचेज कर रखा है, या आपके कौन से ब्रांड के आप जो क्लोथ्स हैं उसको वियर कर रहे हैं, या आपके जो स्टेशनरी के आइटम्स हैं, आपके जो बैग्स हैं, आपके जो अदर जो भी आपके आइटम्स हो सकते हैं, उसमें आप कौन सा ब्रांड यूज कर रहे हैं। तो ब्रांड नेम is also the part of product. Your packaging should be attractive, it should be appealing to the customers, it should be ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी मतलब कि किसी पर्टिकुलर किसी के सेंटिमेंट्स को हट करें। जैसे कई बार होता है कि हम कई रीजन में हम जाते हैं, कई प्लेसेस में विजिट करते हैं, तो जो कलर्स होते हैं, जैसे ब्लैक कलर की अगर आप देखें तो ब्लैक कलर की जो पैकेजिंग है बहुत ही रेयर आपको मिलेगी, बहुत रेयर, क्योंकि जो ब्लैक कलर है उसको जो है कई रिलीजन में उसको शुभ नहीं माना जाता है, तो उस चीज से आपको बचना चाहिए। तो आप और ऐसा भी मतलब कि कुछ ऐसा पैकेजिंग आप करें कि ठीक है वो आपके कस्टमर को अट्रैक्ट करे, उसके आइज को अपीलिंग लगे, उसको कस्टमर को लगे कि हाँ ठीक है जो आप पैकेजिंग कर रहे हैं कि अल्टीमेटली वो आपके प्रोडक्ट को उसी पैकेजिंग के बेस पे वो बाई करने आ रहा है। जैसे अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि गिफ्ट आइटम्स है, जो आपका गिफ्ट आइटम्स होता है उसमें आप जो उसके अंदर प्रोडक्ट है वो तो है ही है, उसके बाहर की जो पैकेजिंग होती है वो अट्रैक्टिव उसको बनाती है। तो अगर आपने कभी किसी को गिफ्ट दिया हो या कभी किसी ने आपको गिफ्ट दिया हो तो आई गेस जहां तक मेरा अनुमान है कि किसी को कभी ब्लैक कलर की पैकेजिंग में नहीं मिला होगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा एज अ मार्केटियर कि क्या मतलब कि मैं कौन से उसको कॉम्बिनेशन को यूज कर रहा हूँ। सर्विसेज भी आपकी प्रोडक्ट है। नेक्स्ट वन इज प्राइस। तो प्राइस बेसिक अमाउंट दैट कस्टमर जो है पे कर रहा है किसी भी प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए। तो अब वो जो प्राइस पे कर रहा है, तो जैसे हम लोग अभी डिस्कस करते आ रहे हैं कि उसको उस प्राइस की वैल्यू मिलनी चाहिए, उसको उस प्राइस का लगना चाहिए कि हाँ मैंने अगर सपोज करके 25 रुपीज का मास्क हमने अगर कस्टमर को सेल किया तो कस्टमर को लगना चाहिए कि यस दिस इज creating value for me and it is satisfying what I wanted to be satisfied। तो आपका प्राइस जो है must be in consonance with the offering that you are making to your customer। तो प्राइस में क्या इंक्लूड होता है? लिस्ट प्राइस, डिस्काउंट्स, अलाउंसेस, पेमेंट पीरियड, क्रेडिट टर्म, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो लिस्ट प्राइस आपका बेसिक प्राइस है जो आपके प्रोडक्ट का है। सपोज करो जो हमें एमआरपी लिखा होता है वो आपका लिस्ट प्राइस है। कई बार हम जाते हैं अगर कोई पैकेट वाली चीज है तो उसमें जितना एमआरपी होता है वो उतने का ही मिलता है, कि उससे आपको कम ज्यादा नहीं। और कई बार होता है कि अगर हम क्लोथ परचेज करने जाते हैं मार्केट के अंदर तो हम देखते हैं कि एमआरपी कुछ और लिखा होता है और जो हमें फाइनल बार्गेनिंग करने के बाद जब वो हमें प्रोडक्ट मिलता है तो वो हमें कुछ और प्राइस में मिलता है। तो आप ये जो टेक्टिक्स हैं कि मतलब कि आपका जो एक एमआरपी है ठीक है, वो अगर आप पैकेजिंग के पैकेट्स आइटम्स में वो ठीक है, और कई बार उसमें लूज आइटम्स में जैसे आपका जीन्स है या कपड़े हैं और कुछ हो सकता है तो उसमें आप बार्गेनिंग कर लेते हैं। तो लिस्ट प्राइस आपका हो गया। उसके बाद डिस्काउंट, कई बार हम प्रमोशनल टूल्स के तौर पे डिस्काउंट्स का यूज करते हैं कि भाई आप सपोज करके आपने जैसे कई बार प्रोडक्ट के अंदर होता है कि बाय 1 गेट 1 फ्री या बाय 3 गेट 1 फ्री, तो इस तरह के आप जो डिस्काउंट दे रहे हैं, रिबेट्स जो दे रहे हैं वो भी आपका प्राइस का टैक्टिक्स है, प्राइस का पार्ट है। अलाउंसेस, कई बार आप अपने वाउचर्स दे देते हैं कंज्यूमर को। सपोज करो कि जैसे अब हम लोग देखें कि कोविड-19 के टाइम में क्या हुआ कि ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो चाहे आपका पेटीएम है, भीम पे है, यूपीआई इंटरफेस है, फोन पे है आपका, या आपका पेयू मनी है, गूगल पे है, अब तो व्हाट्सएप पे भी इंट्रोड्यूस मतलब उसका फीचर्स अभी टेस्ट किया जा रहा है। तो जितने भी हो सकते हैं तो आप क्या करें, वाउचर्स दे रहे हैं। कई बार आप कैशबैक के तौर पे उसको दे देते हैं, या कई बार कहते हैं कि किसी कंपनी का सपोज करो किसी कोल्ड ड्रिंक का वाउचर दे दिया या किसी इवेंट का वाउचर दे दिया। तो ये जो सारे टैक्टिक्स हैं कि आप अपने कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करते हैं, ये आपका प्राइस का पार्ट होता है। पेमेंट पीरियड कि ठीक है आपने कि कई बार होता है कि हमने कहा ठीक है आप इस पर प्रोडक्ट को परचेज कर लो, इसका पेमेंट बाद में कर देना, इतने टाइम पीरियड बाद में कर देना। क्रेडिट टर्म्स मतलब कि अगर आप जो है क्रेडिट पे आप सेल कर रहे हैं, उधार पे आप अगर बेच रहे हैं तो वहां पे आप अपने कस्टमर्स को क्या टर्म्स पे सेल कर रहे हैं,
तो वो सारी, तो ऑल दिस फैक्टर्स ऑफ प्राइस फॉर्म द part of your price component of marketing mix. That is second component of your marketing mix. So basically list price, discounts, allowances, payment period and credit terms. These 4 to 5 items form the basis of your price. Next one is place. Place is the physical distribution of your product. So place basically includes how you finally make the availability of your product to your consumers, customers. तो आप अपने टारगेट कस्टमर्स तक, अपने टारगेट कंज्यूमर तक अपने प्रोडक्ट को कैसे पहुंचा रहे हैं। जैसे हमने एग्जांपल अभी डिस्कस किया कि भाई अगर हम फार फ्लंग एरियाज में अगर जो है अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना चाहते हैं तो वहां पे टाइम हमें लगेगा, तो वहां पे चैनल्स क्या होंगे, हमारे कवरेज क्या होगा, लोकेशन, ये सारी जो फैक्टर्स हैं। चैनल्स मतलब कि आपके मार्केट इंटरमीडिएटरीज जो हैं, जो हमारे उसके डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल्स होते हैं, क्या आप डायरेक्ट चैनल्स में जा रहे हैं, इनडायरेक्ट चैनल्स में जा रहे हैं, या आप वन वे जा रहे हैं, 1 to 1 जा रहे हैं, डायरेक्ट आप अपने कस्टमर को सेल कर रहे हैं, या मार्केट इंटरमीडिएटरीज का आप हेल्प लेंगे, या फिर आप कुछ और मेथड से चलते हैं। जब हम लोग इसको लेटर और डिटेल में डिस्कस करेंगे तो हम लोग देखेंगे जो हमारा चैनल्स होते हैं मार्केटिंग के, वो कई बार हमारे जैसे एक चैनल होता है कि आप क्या करते हैं, पहले आपने कंपनी में अपने प्रोड्यूस किया, फैक्ट्री में प्रोड्यूस किया, उसके बाद आपने होलसेलर को कांटेक्ट किया, होलसेलर ने आपके रिटेलर को कांटेक्ट किया, रिटेलर के बाद जो है फाइनल जो किराना स्टोर्स हैं उनको कांटेक्ट करता है। और कई बार हो सकता है कि आप सीधा फैक्ट्री से प्रोड्यूस करें, आप होलसेलर को बीच में से हटा के सीधा रिटेलर से कांटेक्ट करें, और फिर आप जो है अपने रिटेलर जो है आपका, उसके बाद वो फाइनल कंज्यूमर से कांटेक्ट करेगा। और कई बार होता है क्या है तीसरे चैनल में कि आप सीधा 1 to 1 करेंगे, जैसे कि आपने ना होलसेलर से कांटेक्ट किया, ना ही रिटेलर्स को से कांटेक्ट किया, सीधा आपने फैक्ट्री आउटपुट जो है सीधा कस्टमर को भेज रहे हैं। जैसे हम रिटेल स्टोर देखते हैं, जैसे बाटा है, खुद का शोरूम है, और कई ब्रांड होता है जो अपने अपने शोरूम चलाते हैं, ये सीधा हमारा कस्टमर से कांटेक्ट है, हमारे बीच में कोई होलसेलर नहीं, कोई रिटेलर नहीं। ज्वेलरी शॉप्स हैं आपके, तनिष्क हो गया या जो भी और ब्रांड है, ये जो डायरेक्ट अपनी जब रिटेल स्टोर्स चलाते हैं, तो वो हम मार्केट चैनल्स में देखेंगे कि वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो बेसिकली मार्केट चैनल्स में आप कितने इंटरमीडिएटरीज, कितने मिडिलमैन को आप इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को अपने फाइनल कस्टमर तक पहुंचाने में। क्या आप जितने ज्यादा से ज्यादा आप मार्केट इंटरमीडिएटरीज को इन्वॉल्व करेंगे, उतनी ज्यादा आपकी कॉस्ट होगी। क्यों? क्योंकि आप जितने पॉइंट पे रिटेलर या होलसेलर को जितने इंक्लूड करेंगे, आपको उनको मार्जिन देना पड़ेगा, उतना उनको उनका जो प्रॉफिट है, उनका जो मार्जिन है वो देना पड़ेगा। तो वो प्रॉफिट मार्जिन आपके जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसमें ऐड होगी, तो वो फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस, जो फाइनल प्राइस होगा वो बहुत ज्यादा हो, तो आप कैसे डिसाइड कर रहे हो चीज। उसके बाद कवरेज है कि क्या कवरेज है। अब होता क्या है कि कई बार हम देखते हैं कि होलसेलिंग के अंदर या रिटेलर के अंदर, कि कई बार हमें रिटेलर मार्केटिंग इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर देते हैं। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन कैसा कि भाई अगर मैं सपोज करूँ मैं मार्केट के अंदर रिटेलिंग का काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो रिटेलिंग के अंदर मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, कंज्यूमर क्या परचेज करना चाह रहा है, कस्टमर क्या चाहता है मेरा, तो वो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है। कवरेज क्या कि उनका कहाँ तक दायरा है, कहाँ तक वो कवर कर रहे हैं उस चीज को। और कई बार हमें ये भी बेनिफिट मिलता है एज अ मार्केटियर कि अगर हमारे रिटेलर हमसे जो बाय करते हैं, तो कई बार हमें वो क्रेडिट भी प्रोवाइड कर देते हैं, तो सपोज करके, और या गारंटी ले लेते हैं कि ठीक है आपका जो प्रोडक्ट है वो हम उसको सेल ऑफ करवा देंगे, बस व्हाट यू हैव टू जस्ट हैव टू डू, जस्ट गिव योर प्रोडक्ट्स टू अस। लोकेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन, ऑफ कोर्स इट विल बी मैंडेटरी कि सपोज करो आप ये कहाँ पे आप उसको अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करवाना चाह रहे हैं। जैसे अभी हमने मास्क वाले एग्जांपल दिया कि हम एक साउथ दिल्ली के जो है महरौली बदरपुर बॉर्डर एरिया में अपने मास्क को डिस्ट्रीब्यूट करवाना चाह रहे हैं। इन्वेंट्री, ऑफ कोर्स इन्वेंट्री विल बी नेसेसरी, जो भी आपका स्टॉक है वो होना चाहिए।
उसके बाद फिर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि बाई एयर आप जा रहे हैं, बाई एयर आप उसको प्रोडक्ट को जो है आप अपने फाइनल कंज्यूमर तक ले जाएंगे, या ट्रांसपोर्ट में रेलवेज का यूज करेंगे या रोड्स का यूज करेंगे। आप जैसे अगर आप सपोज करें दिल्ली में कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और आपको नॉर्थ ईस्ट एरिया के जो है नॉर्थ ईस्ट एरिया में आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में उस प्रोडक्ट को बेचना है, तो नॉर्थ ईस्ट में आप जैसे जैसे जाएंगे नॉर्थ ईस्ट के तरफ अगर मूव करते जाएंगे तो वहाँ पे जो रोड्स की कंडीशंस है बहुत कम है और वो भी सीजनल है। या फिर आप जो है क्या कहते हैं ऊपर चले जाएं, दिल्ली से ऊपर जम्मू कश्मीर में चले जाएं, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि भाई 24/7 तो अवेलेबिलिटी होती नहीं है, या 365 डेज तो अवेलेबिलिटी होती नहीं, कुछ कुछ महीने में वहाँ पे रोड्स ओपन होते हैं। तो इस तरीके से आपका ट्रांसपोर्ट क्या होगा। और सपोज करो कि क्या आपको अगर सपोज करो कि किसी और एरिया में ट्रांसपोर्ट करना है, कंट्री टू कंट्री करना है, तो वहाँ पे आपका क्या मेथड होगा ट्रांसपोर्टेशन का। तो ये आपका जो प्लेस वाला है, जो थर्ड एलिमेंट है आपका मार्केटिंग मिक्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ऑफकोर्स जितने भी पीस हैं वो तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं अपने जगह पे, हर किसी का रोल है, लेकिन फाइनल आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसे मार्केट में पहुंचेगा उसको आपका डिसाइड कर रहे हैं प्लेस। लॉजिस्टिक्स जो भी आपका है कि आपके कितने पास उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फाइनली, वो सारा आपको मेंटेन करना है। आपका वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज कैसी हैं, क्या आपका प्रोडक्ट पेरिशेबल है, नॉन पेरिशेबल है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखते हुए आपके अपने जो पी है उसको जो है डिसाइड करना होता है, उसको उसी के अकॉर्डिंगली फॉर्म करना होता है। मूविंग अहेड, द लास्ट पी प्रमोशन। तो प्रमोशन refers to activities that communicate the merits of the product and persuade target customers to buy it। तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ कि अपने प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट कर रहा हूँ। प्रमोशन का मतलब कि आई एम मेकिंग अवेयर ऑफ द फीचर्स ऑफ माई प्रोडक्ट टू प्रोबेबल कस्टमर्स। तो मैं उसके मेरिट्स बता रहा हूँ, मेरिट्स का मतलब उसके फीचर्स बता रहा हूँ कि क्या नया लेकर मैं आया हूँ, उसको मैं प्रमोट कर रहा हूँ। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, अभी रिसेंट जो है स्मार्टफोन का एग्जांपल लेते हैं, जैसे एप्पल का एग्जांपल अगर हम लोग लें, तो अभी एप्पल में क्या हुआ, लेटेस्ट क्या हुआ है कि वो लोग चार्जर नहीं दे रहे हैं। चार्जर नहीं दे रहे हैं, और चार्जर ना देने का जो उनका प्रमोशन का टेक्निक क्या है कि वी आर टेकिंग केयर ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। जो सस्टेनेबिलिटी है, सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट हम लोग पढ़ते हैं, तो उसकी हम केयर करते हुए, क्योंकि अगर हम चार्जर का मैन्युफैक्चर करेंगे तो ये हमारा अलग से जो रिसोर्सेस है वो कंज्यूम करेगा, ये एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेगा। देन इसके बाद फिर इसके लिए हमें अलग से पैकिंग करनी पड़ेगी, उसके पैकिंग का स्पेस बनाना पड़ेगा जो है बॉक्स के अंदर। तो ये जो सारे मतलब कि आप उसके जो फेवर में आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट दूसरे से बेटर क्यों है और कस्टमर क्यों हमारे प्रोडक्ट को परचेज करे, वो आपका पार्ट होता है आपके प्रमोशन कैंपेन का। तो प्रमोशन refers to the activities that communicate the merits of the product and persuade target customers to buy it। तो आप अपने कस्टमर को सिर्फ ये कह के नहीं, अपने प्रोडक्ट के फीचर्स भी नहीं बता रहे, बल्कि उसको इस वे में डिस्प्ले कर रहे हैं कि आपका जो कस्टमर है, टारगेट कस्टमर है, वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करे, उसको बाय करे। तो अब हमारे प्रमोशन के अंदर टूल्स क्या हो सकते हैं। अच्छा, प्रमोशन के अंदर जब आप अपने जो है ये मेरे को एक बहुत बढ़िया एग्जांपल याद आ गया प्रमोशन के अंदर, जब आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करें मार्केट में, तो आपके जो डिफरेंट जो जिस एरिया में आप प्रमोट कर रहे हैं, जहां भी आप प्रमोट कर रहे हैं, वहां के लोगों का सेंटीमेंट क्या है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा न हो कि किसी की जो है सेंटीमेंट्स को हट करे। अभी जैसे तनिष्क का ही जो एड चल रहा था अभी रिसेंट में, तो वो कुछ मतलब कि जो हिंदू संगठन है उन्होंने उसके ऊपर कुछ अपना जो है वॉइस रेस करी। अब वो क्या था, कितने हद तक सही है, कितने हद तक गलत है, उसको तो हम लोग जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन आपको एज अ मार्केटियर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हमारा मार्केट में प्रोडक्ट जो है अटेंशन गेन करने की बजाय, हमारा ब्रांड इमेज बनने की बजाय वो हमारे लिए डैमेज का काम। इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप प्रमोशन के अगर कोई आप इनडिसेंट प्रमोशन ना करें। आप जो सोसाइटी के वेल सेटल्ड रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं उसकी जो
सोसाइटी के इथिक्स हैं, रूल्स हैं, उसके जो अपने स्टैंडर्ड्स हैं, आप उनको वायलेट ना करें। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट प्लेस। तो प्रमोशन के हमारे पास क्या क्या टूल्स हैं? एडवर्टाइजिंग, सिंपली एडवर्टाइजिंग में क्या है, हम पेड फॉर्म में हम दे रहे हैं कि किसी एक कंपनी को हम हायर कर रहे हैं और उसको हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट करने के लिए कह रहे हैं। पर्सनल सेलिंग, 1-to-1 सेलिंग, सेल्स प्रमोशन की सेल्स प्रमोशन में जैसे आपको एक एग्जांपल दो जियो का। जियो सिम जब आया था स्टार्टिंग में तो उसने क्या है, इसको हम पर्सनल सेलिंग के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं। क्यों इंक्लूड कर सकते हैं? पर्सनल सेलिंग में हम 1-to-1 कर रहे हैं, तो इस जियो ने भी 1-to-1 किया और सेल्स प्रमोशन भी इसको कह सकते हैं। 1-to-1 के हमने डायरेक्ट अपने कस्टमर को सेल किया, हमने उसके एडवर्टाइजिंग नहीं करी टीवी में, उसके लिए न्यूज़पेपर में एड्स नहीं दिए, किसी और कंपनी को हायर नहीं किया, किसी सेलिब्रिटी को इंगेज नहीं किया हमने, तो हमने सीधा अपने कस्टमर से कांटेक्ट किया। दैट इज अ एग्जांपल ऑफ पर्सनल सेलिंग एज वेल एज सेल्स प्रमोशन। तो सेल्स प्रमोशन के अंदर क्या कर रहे हैं कि आप सपोज करो कि जैसे स्मार्टफोन का इसमें जो है एग्जांपल बेस्ट सूट करेगा। स्मार्टफोन के अंदर आपने क्या किया कि स्मार्टफोन आप बाई करके ले आते हैं और उसके साथ आपको किसी कंपनी का सिम कार्ड फ्री में दे दिया जाता है, फ्री कनेक्शन दे दिया जाता है आपको कुछ महीने के लिए, आपको बेनिफिट दे दिए जाते हैं कि सपोज करो कि आपको दे दिया कि ठीक है 3 months यू विल बी गेटिंग free unlimited data and calling benefits. So these are the techniques of sales promotion. कि with another product you are promoting some other product. So that is the sales promotion. Public relations, of course, you have to maintain public relations. What is your company doing? What public thinks about your company? That is the पार्ट ऑफ योर प्रमोशन। तो हम कहते हैं कि पब्लिक रिलेशंस, जो हम प्रेस रिलीज करते हैं, जो हम मीडिया सोसाइटी से कॉन्टैक्ट बना के चलते हैं, रिपोर्ट जो बना के चलते हैं। यस, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ सोसाइटी। डायरेक्ट एंड डिजिटल ऑल्सो आर द फॉर्म्स ऑफ प्रमोशन, कि आपने अपने कस्टमर को सीधा डायरेक्ट एंड डिजिटल वे में जो है कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ईमेल के थ्रू आपको अगर मैसेजेस आते हैं, कई बार आपके ईमेल्स में आप चेक करते हैं किसी कंपनी का प्रमोशन आ जाता है, जो जीमेल वाले में आप देखते हैं प्रमोशंस के अंदर। सर जी सर, एक लड़की अरीना वो स्टार्टिंग में ऐड हुई थी, अब उसका पता नहीं क्या नेटवर्क इशू और क्लास में ज्वाइन नहीं हो पा रही। सर एक बार आप अपनी साइड से देख लेना। ओके, थैंक यू सर। तो डायरेक्ट एंड डिजिटल वे में हम भी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल आपको दे रहा था ईमेल सेलिंग का, कि आप क्या देखते हैं, आप सडनली किसी मॉर्निंग में अपने ईमेल को चेक करते हैं और आपको जो है कंपनी की तरफ से कुछ प्रमोशनल ईमेल्स आते हैं कि ट्रेवलिंग पैकेज का कई बार आ जाता है, कई बार आपको कुछ और आ जाता है कि आप जो है क्या कहते हैं एजुकेशन के बारे में आ गया, तो ये सारी चीजें आ सकती हैं। या कई बार हमें को ऐसा ऑफर आ जाता है कि स्मार्टफोन के बारे में आ जाता है कि आपको इतने का डिस्काउंट मिल जाएगा, क्लोथ के ऊपर आ जाता है, एनीथिंग। तो ये जो टेक्निक होती है, और ये आपकी बड़ी मतलब कि जान के हैरानी होती है हमें कई बार कि कंपनी को कैसे पता कि हमें क्या पसंद है। अगर आप अपना ईमेल जब चेक करते हैं तो आपको वो जो ईमेल आपको भेजा जाता है, तो आप देखते हैं कि आपसे बहुत ज्यादा वो रिलेटेड है। और वो उनको कंपनी को कैसे पता लगता है कि आपके एनालिटिक्स से, जो गूगल एनालिटिक्स है, जो बिग डेटा एनालिसिस कहते हैं, डेटा माइनिंग, उससे पता लगता है कि जब आप कोई भी गूगल पे आप विजिट करते हैं, अगर आपकी लॉगिन आईडी से आपने किया, उसका लॉगिन है, तो उसमें जो भी आप जिन वेबसाइट पे जहां जहां आप विजिट कर रहे हैं, वहां पे वो सारा रिकॉर्ड होते रहता है। वो सारा डेटा माइनिंग के थ्रू, बहुत जो है सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स होती हैं, उनके थ्रू प्रोसेस होता रहता है वो डेटा, और वो कंपनीज को सेल कर दिया जाता है। तो उस डेटा के बेस पे आपको प्रमोशनल मैसेजेस आते हैं। आपको कभी मतलब कि किसी को आपने अपना नंबर नहीं शेयर किया होगा, लेकिन कई बार आपके टेक्स्ट मैसेज आ जाता है। तो ये जो सारी टेक्निक्स हैं, डेटा माइनिंग जो है, हमारा बिग डेटा एनालिटिक्स है,
ये जो सारी चीजें हैं इनके थ्रू आप कैसे जो है अपने प्रोडक्ट को अपने जो कस्टमर्स थे वहां तक पहुंचा पा रहे हैं। तो ये प्रमोशन था। उसके बाद यहाँ पे 2-3 स्लाइड्स और रहती हैं।